بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں وہ خون کے موضوع پر ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانی جسم میں خون کی اہمیت کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، اس کے باقی پہلو بھی ہم کور کریں گے۔ جی سر، پہلے تو اسی کی وضاحت کر دیں کہ انسانی جسم میں خون کا کردار اصل میں ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرا آپ کا باقی لوگوں کے جسم خون سے چلتے ہیں۔ جگر خون بناتا ہے، وہ دل کو مہیا ہوتا ہے، دل پمپنگ کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں میں پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ دماغ کی خوراک بھی خون ہی ہے۔ اگر انسانی جسم میں خون کم ہو تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جسم چل نہیں پاتا۔ اگر خون تھوڑا ہو تو وہ دل کی پمپنگ کے باوجود جسم کے تھوڑے سے حصے کو پہنچتا ہے، جسم کے دور کے علاقوں کو نہیں پہنچتا، جن میں ہاتھ، پاؤں اور سر بھی شامل ہے۔ یعنی جسم کو چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ خون ہی ہے۔ خون کم ہو تو جسم کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خون کی کمی ہوتی ہے جب ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، خون انسان کا جل جاتا ہے۔ دوسری خون کی کمی پیدا ہوتی ہے جب ہم سوکھے سالن گرم میں پکاتے ہیں، شوربے والے سالن نہیں پکاتے، لہذا گرم میں شوربے والے سالن پکانے چاہیے۔ جگر کی ایک بیماری ہے ہیپاٹائٹس، اور اس میں وہ پیدا ہی سوکھے سالن کھانے سے ہوتی ہے جو ہیپاٹائٹس لے کر آتی ہیں۔ میں بعض صورتوں میں انہیں کہتا ہوں کہ سوکھے سالن بند کریں، ایک ہفتہ یا 2 ہفتے شوربے والے سالن کھا کر آئیں، ان کا ہیپاٹائٹس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی سوکھے سالنوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ریڈ سیلز خصوصاً سڑ جاتے ہیں جب ہم عشاء کے بعد نہیں سوتے، اچھا، تو ریڈ سیلز جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر کوئی انسان ساری رات جاگے کسی مجبوری میں، کسی وجہ سے، تو صبح اس کے چہرے کا رنگ پیلا پت ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ریڈ سیلز جل گئے ہوتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو صبح جسمانی سرگرمیوں میں، پیدل چلنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص رات عشاء کے بعد کوئی لازمی کام کر رہا ہے تو اس کو استثناء تو نہیں ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے۔ جو لوگ عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہیں انہیں سو جانا چاہیے تاکہ ان کا خون جلنے سے بچ جائے۔ 70% لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں، اور خون کی کمی دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ خون کی کمی جگر سے تعلق رکھتی ہے، جگر خراب تو دل بھی کمزور، کیونکہ اسے جتنا جگر سے خون ملنا چاہیے وہ اتنا ملتا نہیں ہے، تو اسے زور لگانا پڑتا ہے۔ اور پیچھے سے اگر خون کم آ رہا ہے جگر سے تو وہ آگے بھی تھوڑا ہی جائے گا جسم کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہونا چاہیے 13 سے 16 تک خون کی مقدار جو ہے مردوں میں، اور 12 سے 16 تک خواتین میں، لیکن 8، 9، 10 پر ہیں بہت سارے لوگ، یعنی منیمم سے بھی نیچے ہے لوگوں کا خون 70% کا خون کی کمی کا شکار ہے۔ آنکھوں کی رگوں میں بھی خون ہی دوڑتا ہے، تو خون انسانوں میں 13 سے 16 کے درمیان، نہ 13 نہ 16، 13 اور 16 کے درمیان، مردوں میں 14.5 اور خواتین میں 14، دونوں میں سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ 13 خون نہیں رہنا چاہیے، 13 تو منیمم ہے،
16 मैक्सिमम है, वो भी हद है, हदों से नहीं निकलना होता। ठीक है, इसे दरमियान में रखना है, 14.5 समझ लें, ये इसका मिड है। तो सर ये खून की मिकदार जो आपने बताई है, ख्वातीन में 12 से 16 और मर्दों में 13 से 16। तो इसकी मिकदार मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? जी, एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं CBC, वो है कलेक्टिव ब्लड काउंट, उसमें आ जाता है ठीक। तो HB की मिकदार कितनी है, रेड सेल्स की कितनी है, व्हाइट सेल्स की कितनी है, और प्लेटलेट्स कितने हैं। बाकी भी 12-14 चीजें हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें मेन देखी जाती हैं। अगर HB कम हो तो उम्मूमन रेड सेल्स और व्हाइट सेल्स भी कम ही होते हैं। उसका तरीका ये है, प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं, उसका तरीका ये होता है खून की मिकदार बढ़ाएं, तो खून की जो केमिस्ट्री है वो खुद ही ठीक हो जाती है। मिड में लाए खून। खून की कमी हो तो उसके लिए घरेलू तौर पे क्या फल सब्जियां या क्या? बड़ी सब्जियां, बड़े फल, बड़ा सब कुछ। मसलन करेले खून बनाते हैं, खून साफ करते हैं। अगर करेलों के सालन में आप मटन की बोटी शामिल कर लें तो उससे करेलों की अफादियत बढ़ जाती है। लेकिन करेले जो कड़वापन है, करेलों का कड़वापन ही दवाई है। फीके नहीं बनने चाहिए, करेले कड़वे बनने चाहिए, वो ही उनकी नेचर है, वही दवाई है। करेलों का कड़वापन ही दवाई है। लोबिया का सालन, शोरबे वाला, सूखे सालन तो भूल जाएं अगर सेहतें बनानी है तो, अगर खून बनाना है तो सूखे सालन भूल जाएं। शोरबे वाले सुरख लोबिया, शोरबे वाला बकरे की कलेजी का सालन, सारे घरों में सूखी कलेजी खाई जाती है, बुनी हुई नहीं। हमें क्या करना है, शलजम शोरबे वाले, कद्दू शोरबे वाले, टिंडे शोरबे वाले, आलू शोरबे वाले, कीमा शोरबे वाला, गोश्त शोरबे वाला। सूखा सालन खाने का मतलब है अपने आप को नुकसान पहुंचाना। अब मुआशरे में सबसे बड़ी कबाहतों में से एक कबाहत है कि हम शोरबे वाला सालन ही छोड़ गए। घरों में मछली भी शोरबे वाली पकती थी, अब कोई नहीं मछली शोरबे वाली पकाता। फ्राइड फिश हाँ नहीं, ठीक है। शोरबे ने ही आपको बचाना है। हमें जब भी चावल खाने हैं या शोरबे वाली मछली के साथ खाने हैं या काले चने के शोरबे के साथ खाने हैं। ये दो चीजें चावल की खामियों को कवर कर लेती हैं। अच्छा, हल्दी खून बनाती है, काली मिर्च, यस काली मिर्च खून बनाती है, काला जीरा खून बनाता है, आम, आड़ू, सेब, अमरूद, शलजम, दरमियाने साइज का शलजम जो है वो 4 सेबों के बराबर ताकत रखता है। चुकंदर बहुत बड़ा खून का जरिया है। बेशतर फल खुबानी खून बनाएगी, और आम, आड़ू, सेब। जैसे आपने बताया कि करेला खून साफ करता है, क्या खून गंदा भी हो सकता है? जी, गंदा इसलिए हो सकता है, हमारे जिसमें एक प्रोसेस होता है मैदे से ग्राइंड होकर जो चीजें खुराक में से जुज़े बदन बनने के काबिल होती हैं वो खून बनाने के लिए जिगर को दे दिया जाता है, और बाकी जो गंद बंद होता है वो यूरिन मसाने के स्पुर्द कर दिया जाता है, और स्टूल छोटी आंत बड़ी आंत के जरिए बाहर जाने का रास्ता है। तो इसी तरह हमारी खुराक में से जो खून बनता है वो भी गंदा हो सकता है।
क्या नुकसान है अगर खून गंदा हो जैसे? खून के गंदे होने की वजह से कई बीमारियां आती हैं। गंदे खून से बीमारियां, कैंसर गंदे खून की बीमारी है, एक्जिमा गंदे खून की बीमारी है। पिंपल तो बाहरी लोगों को नजर आ जाता है तो उन्हें एहसास होता है कि ये इसका कुछ कर लें, वो उसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। पिंपल चूंकि आमतौर पर चेहरे पर आते हैं तो लोग अपने चेहरे की हिफाजत करना चाहते हैं, वरना सोराइसिस भी गंदे खून की बीमारी है। हम इन चीज़ों का इलाज, सोराइसिस का, पिंपल्स का, एक्जिमा का, खारिश गंदे खून की निशानी है। खून साफ हो तो कभी किसी इंसान को खारिश नहीं हो सकती। तो गंदा खून साफ करना होता है। शक्कर का शरबत गंदा खून साफ करता है, स्कंजबीन गंदा खून साफ करती है, करेले का सालन गंदा खून साफ करता है, काली मिर्च का सालन खून बनाता भी है, खून साफ भी करता है। लिहाजा जब भी हम देखें कि हमारी रंगत पीली पड़ रही है या हमारे चेहरे या हाथों पर या गर्दन पर कोई पिंपल्स आ रहे हैं, कोई फोड़ा, फिंसी, कोई दाने निकल रहे हैं, तो समझे खून गंदा है, उसको साफ करना होता है। गंदे खून को साफ करने का एक बहुत बड़ा इलाज है मेहंदी के सूखे पत्तों वाला पानी। उसका तरीका ये है कि असर के वक्त 1 चम्मच सूखे पत्ते मेहंदी के 1 गिलास पानी में भिगोकर डांप दें। अगली सुबह फजर के वक्त वो पानी आप छान लें, पत्ते फेंक दें। उस पानी में 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून अपने टेस्ट के मुताबिक कर दें। वो उस पानी में मिक्स करना है, वो मीठा हो जाएगा। उससे एक फायदा ये भी होगा कि मेहंदी के पत्तों की कसैल जो है उस पर काबू पाया जा सकेगा। बसूरत दीगर शक्कर इस नुस्खे का हिस्सा है। फजर के वक्त दोबारा भगोई और असर के वक्त पी लें। ये 1 हफ्ता करना भी काफ़ी है, लेकिन जो 5 हफ्ते कर लेगा उसका खून तवील अरसे तक साफ रहेगा, कई साल तक साफ रहेगा। जब कोई चीज़ हमारी जिल्द पर जाहिर होती है, उनमें से सिर्फ 2 चीज़ें उनका इलाज बाहर से हो सकता है। उनमें एक कट लगना है, कोई बड़ा कट लग गया, बाहर से इलाज हो सकेगा। हाथ जल गया, पाँव जल गया, गर्म चाय गिरने से, गर्म पानी गिरने से, तो उसका इलाज बाहर से हो सकता है। इसके अलावा जिस्म पर जाहिर होने वाली हर बीमारी का इलाज जिस्म के अंदर से होना है, क्योंकि वो अंदर की खराबी को जाहिर करता है। अंदर की बीमारी जो है वो जिल्द पर नमूदार हुई है। इन सब का इलाज अंदर से होना है, खून साफ करके होना है। इसके लिए बहुत सारी खुराकें हैं खून साफ करने। जो चीज़ें खून बनाती हैं उनमें खून साफ करने की सलाहियत भी होती है। नीम बहुत बड़ी दवाई है खून साफ करने की। जी जी। बहुत पहले मेरा तो अपनी बचपन में लड़कपन, जवानी की तरफ ज़हन चला जाता है। बरसात के आते ही माएँ अपने बच्चों को नाक मुंह पकड़ के नीम घोट कर वो पानी पिलाती थी, ताकि सीजन में गंदे पानी में जाने से या मरसूद मौसम की वजह से या गली मोहल्लों में गंद बढ़ने की वजह से बच्चों को फोड़े फिंसियाँ ना निकले।
نیم کا دینے کا یہ فائدہ. جو چیزیں آپ کے جسم میں خون بناتی ہیں وہ آپ کے سسٹم کو فنکشنل کر دیتی ہیں. آپ خون صاف ہو, خون نیا ہو, چہرے پر جھلکتا ہے, خوبصورتی بن کر جھلکتا ہے. جی تھینک یو سر. ویلکم جی, ویلکم. اللہ حافظ.